ਅੱਜ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹਰਿਓਮ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 6 ਅਭਿਆਸ 6.1 ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਉਲਟ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਊੜਾ ਭਾਗ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਤਾਂ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਟ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਪੱਛਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਊਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉੱਤਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਈੜੀ ਭਾਗ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ। ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 326 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 326 ਈਸਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 326 ਸਾਲ, 326 ਈਸਵੀ। 700 ਰੁਪਏ ਹਾਨੀ। 700 ਰੁਪਏ ਹਾਨੀ, ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ 700 ਰੁਪਏ ਲਾਭ। ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਲਟ ਲਾਭ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਟ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਟ ਦਾ ਉਲਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੇਟ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਲਟ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਨਾਰਥ ਦਾ ਉਲਟ ਸਾਊਥ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਥ ਸੀ। BC ਦਾ ਉਲਟ AD। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 0 ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 2020 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਸਵੀ ਜਾਂ AD ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ BC ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਿਸਟ। ਤਾਂ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਯਾਨੀ ਕਿ 326 BC ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ 326 AD। ਅਤੇ ਲੋਸ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਲੋਸ ਆਫ 700 ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 700। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।
सब तो पहला सम है साडा, एक हवाई जहाज़ जमीन तो 2000 मीटर उच्चा उड़ रहा है, ऊंचाई ते उड़ रहा जी। ये साडी धरती है, मान लो धरती तो ऊंचाई जिन्नी भी हुंदी है उसनूं असीं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव अंकां नाल। तो इस करके 2000 मीटर की ऊंचाई ते उड़ रहा, तो असीं लिखांगे प्लस 2000 मीटर, प्लस 2000 मीटर। सो इस तरीके दे नाल तुसीं इहदा आंसर जिहड़ा है वो प्लस 2000 मीटर जो है वो मैंशन करना। एक पनडुब्बी समुद्र तल तो हेठां गहराई ते है, तो धरती के लेवल तो गहराई ते जिहड़ी दूरी होएगी उन्होंने आपां नैगेटिव साइन दे नाल रिप्रजेंट करना, माइनस लगाना उसके अगे, माइनस लगाते सानूं समझ आ जाएगा कि वो गहराई की गल कर रहा है। 800 मीटर नीचे है तो यदा मतलब आप लिखांगे 800 मीटर के अगे माइनस का साइन। सो मीटर जरूर लिखना है, तो असीं इत्थे मीटर एम ਜਾਂ फिर मीटर पूरा लिख सकते हैं। खाते विच 200 रुपये जमा, जिहड़ी चीज़ जमा हो गई है उहदे अगे जमा का निशान पाना है, प्लस का निशान है, देखो पाया, तो आप इहदे नाल रुपए जरूर लिखो। खाते विच 700 रुपये कढ़ाउणा मतलब कढ़वा लेने उस विचों, तो माइनस हो गए ने, तो इस करके इहदे अगे नैगेटिव साइन असीं पाउणा है, तैनूं रुपए जिहड़ा है वो जरूर इहदे नाल लिख सो, माइनस 700 रुपीज़। थर्ड सम, संख्या रेखा दे दर्शाना है। संख्या रेखा दे दर्शाण दे वास्ते असीं की करांगे, सब तो पहला एक संख्या रेखा बनावांगे। संख्या रेखा ये तुसीं देख रहे हो, संख्या रेखा बनाई गई है जिस दे मध्य दे विच 0, ते उस तो बाद जिहड़ा है -1 उस तो पहला, -2, -3, -4, -5, इस तरीके नाल माइनस वाले जिहड़े अंक है वो लिखते रहना है। तो इस दे पॉजिटिव वाले पासे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह अगले अंक जिहड़े हैगे ने वो मार्क करते हुए लिखते रहना है, जिवें कि चित्र दे विच तुसीं देख रहे हो। हुण तुसीं की करोगे, इहदे विच जिहड़े सारे अंक ने उन्हां नूं दर्शाना है। सब तो पहला +5, तो +5 कित्थे है, जिथे भी है, ठीक है, उहदे आले दुआले मार्क करना है, तो उहदे उपर लिख देना है +5 दोबारा तो। -10 कित्थे है जी, -10 उसनूं मार्क करना है, इस तरह सर्कल बना देना उसके आले दुआले, तो ये उपर लिख भी देना है कि ये -10 रिप्रजेंट करता है। +8 ये रहा +8। उस तो बाद -1 कित्थे, 0 तो खब्बे पासे है, तो इस करके -1। ये दोहराई चल रही है, आप पहला भी ये सम कीते ने, ठीक है। तुसीं तुहानूं याद होएगा कि अपने कोल जिहड़े 0 तो खब्बे पासे ने वो अंक छोटे ने, तो 0 तो छोटा है -1, -1 तो छोटा है -2, -2 तो छोटा है -3, -3 तो छोटा है -4। तो जिहड़ा भी अंक खब्बे पासे है वो छोटा हुंदा, जिहड़ा उसके सज्जे पासे है वो वड्डा हुंदा। जिवें कि उदाहरण के तौर पर अगर -6 तो -5 की गल करिए तो -6 छोटा है, -5 वड्डा है। तो इस तरीके नाल अगर 2 तो 3 की गल करिए तो आप 2 खब्बे पासे तो छोटा है, जिहड़ा सज्जे पासे 3 है वो वड्डा है, तो 3 वड्डा हुंदा है। सो इहदा ध्यान रखना है, सज्जे पासे वाला अंक वड्डा हमेशा। इस तरीके दे नाल जिहड़ा है सम नंबर आपां 4 ते पहुँचते हैं। इहदे विच पुछया गया, चित्र विच सीधी रेखा बनाई गई है जो संपूर्ण संख्यावां नूं दर्शाउंदी है। इस रेखा नूं देखो अते हेठ लिखे बिंदुओं का स्थान पता करो। असीं इन्हां बिंदुओं नूं देखना है तो ध्यान नाल देखना है। आओ देखिए की कहंदा है। सब तो पहला इत्थे देखो 0 लिखिया है, तो ये 0 अंक है। उपर वाल नूं वधदे होए धनात्मक अंक लिखे हुए हैं, जिवें इत्थे +8 लिखिया है, तो इसका जिहड़ा पहला अंक होएगा ये +1 नूं दर्शाएगा, दूसरा +2 नूं, तीसरा +3 नूं, चौथा B जिहड़ा है वो +5 नूं दर्शाएगा। तो दोबारा देखते हैं, ओ जिहड़ा है वो 0 नूं दर्शा रहा है, उस तो बाद उपरला अंक वो +1 नूं दर्शा रहा है, ए जिहड़ा है +2 नूं दर्शा रहा है।
ठीक है। तो उस तो उपर +3 रिप्रजेंट किया होया, प्लस बी जोड़ा है +4 के बराबर होया, +4 दे, ठीक है जी। उस तो बाद +4 सी जोड़ा है +5 हो गया, +5 तो उस तो बाद अगे +5 लिख लीए इत्थे, क्लीयर। सी तो उपर वाला अंक जोड़ा है ये +6 नूं दर्शाएगा, इस तो उपर वाला जो है ये अपने कोल मार्क ये +7 नूं दर्शा रहा है। उस तो बाद डी जोड़ा है +8 नूं दर्शा रहा है, वो लिखिया होया है। इस तरीके नाल नीचे वालों चलते हुए तो 0 तो नीचे -1 है ये वाला, ठीक है, क्योंकि उपर वाले पासे धनात्मक संख्यावां तो नीचे ऋणात्मक होणगियां। ये तुहाडे कोल -1 है, ये तुहाडे कोल एच जोड़ा है वो -2 होएगा, ठीक है। एच तो नीचे -3 -4 -5 तो -6, जी जोड़ा है -6 होएगा। उस तो नीचे -7 जो है ये वाला निशान, उस तो अगे ने नैक्सट एफ जोड़ा है -8 होएगा। इस तो बाद नीचे -9 तो ई जोड़ा है -10 नूं दर्शाउंदा है। असी ने इस दी संख्या रेखा नूं चंगी तरीके नाल जांच लिया। हुण आपां देखिए कि अपने कोल की प्रश्न पूछे गए ने। सब तो पहला प्रश्न, जे बिंदु डी संपूर्ण संख्या +8 है तो -8 वाला बिंदु किहड़ा होवेगा। तो -8 वाला बिंदु किहड़ा जी, एफ वाला बिंदु जिहड़ा -8 है। तो हुण असीं आसानी दे नाल दसदे जावांगे क्योंकि असीं संख्या रेखा दे उत्ते सारे अंक लिख लेने। तो एफ बिंदु है -8 नूं दर्शा रहा है, तो असीं आंसर एफ लिखांगे। -8 वाला बिंदु बराबर है एफ। नैक्सट जिहड़ा है वो आड़ा प्रश्न पूछा गया कि जी एक ऋणात्मक संपूर्ण संख्या है। कि जी ऋणात्मक संपूर्ण संख्या है? हाँ जी, जी जिहड़ा हैगा वो -6 के बराबर है, वो ऋणात्मक संपूर्ण संख्या है, धनात्मक नहीं है, ठीक है जी। तो आपां आंसर लिखांगे यस इट इज़ नैगेटिव, यस इट इज़ नैगेटिव इंटीजर। ईड़ी भाग बिंदु बी अते ई, बिंदु बी अते ई दे लई संपूर्ण संख्या लिखो। तो बी किहड़ा अंक है जी, बी अंक है जी +4 के बराबर, बी अंक +4 है। तो उस तो बाद ई कितना है जी, ई भी पूछता, ई है -10 के बराबर। तो बी है जी +4 के बराबर, वो भी लिख दिता, बी बराबर है +4, बराबर का निशान पा दिओ तुसीं। ई बराबर है -10 दे, तो ई की वैल्यू -10 है। असीं चित्र नूं देख के इसका आंसर दस दिता है। आखिरी भाग सस्सा भाग, इस संख्या रेखा उत्ते अंकित बिंदुआं विचों किहड़ा मुੱਲ सब तो घट है। किसका मुੱਲ सब तो घट है जी, सब तो जिहड़ी ऋणात्मक संख्या हुंदा, ऋणात्मक संख्या हुंदी उसदा मुੱਲ सब तो घट है। तो ई जिहड़ी कीमत है -10, ठीक है, -10 जिहड़ी है वो सब तो घट है, यानी कि ई बिंदु जिहड़ा है वो सब तो घट संख्या नूं दर्शाउंदा। सो तुसीं देख रहे हो कि इस तरीके दे नाल जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਧਨਾਤਮਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੀ, ਏ, ਐਚ, ਜੀ, ਐਫ, ਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ, ਸੀ, ਬੀ, ਏ, ਓ, ਐਫ, ਐਚ, ਜੀ, एफ ई। सो ये जोड़े है उस चित्र तो देखते हुए इसके जोड़े आंसरस हैं वो मार्क करने ने, उहदे आंसर लिखना है। नैक्सट जोड़ा सम जोड़े आए ने वो नैशनल अचीवमेंट सर्वे नूं ध्यान दे विच रखते हुए तुहानूं पाए गए ने। आओ इन्हां दे बारे चंगे तरीके नाल पढ़िए ताकि जोड़े साडे पेपर की तैयारी है वो भी नाल नाल हुंदी रहे। साडा पहला सम, हेठ लिखिया विचों किहड़ा सब तो घट सब तो वध तापमान के उछाल नूं दर्शाउंदा है।
सब तो वध उछाल किहड़ा है? उछाल मतलब कि जिहड़ा पहला टैंपरेचर घट सीगा ते उस तो बाद हुण काफ़ी ज़्यादा वध गया। तो जिवें तुसीं देख रहे हो कि भी सब तो पहला ए भाग दे विच 0 डिग्री टैंपरेचर सीगा ते 10 हो गया। तो किन्ना दा वाधा हो गया जी? +10 का वाधा हो गया, 10 डिग्री सैल्सीयस का वाधा हो गया। तो उस तो बाद बी भाग दे विच किन्ना वाधा होया? -4 तो लैके 8 डिग्री तक वधिया। तो पहला तो थोड़ा तुसीं देखो कि -4 तो 0 तक पहुँचा हो, -4 तो लैके 0 तक, -4 तो लैके 0 तक पहुँचा तो 4 अंक तो ये हो गए। फिर 0 तो 8 हो गया, 0 तो 8 अंक ये हो गए। तो 4 डिग्री पहला वध गया तो 8 डिग्री हुण वध गया। तो टोटल कितना वध गया जी? 12 डिग्री सैल्सीयस जिहड़ा है तापमान का उछाल आ गया, टैंपरेचर इनक्रीज़ होया 12 डिग्री सैल्सीयस। तो ये उछाल आया जी 12 डिग्री का सैल्सीयस का। उस तो बाद जिहड़ा है नैक्सट -15 तो -8 आया। तो -15 संख्या रेखा ते भी तुसीं कर सकते हो, -15 तो लैके 8 तक, -15 तो -8 तक। तो किन्ने डिग्री का जिहड़ा है उछाल आया ये -15 तो -14 1, 14 तो 13 2, तो 13 तो 12 3, तो इस तरीके वाधते हुए 8 तक चलना है अपने। तो किन्ने का वाधा हो चुका है जी? ये 7 डिग्री सैल्सीयस का वाधा हो चुका। तो इत्थे तुसीं उछाल लिख लो 7 डिग्री सैल्सीयस। उस तो बाद -7 डिग्री सैल्सीयस तो 0 डिग्री सैल्सीयस। तो ये भी कितना उछाल आया जी? 7 डिग्री सैल्सीयस का उछाल आया। इन्हां दा प्रश्न सीगा कि सब तो वध कदों उछाल आया? तो सब तो वध उछाल आया जी 12 डिग्री सैल्सीयस का। बी पार्ट दे विच -4 तो लैके 8 डिग्री सैल्सीयस तक का जिहड़ा तापमान वधिया सीगा, उहदे विचकार 12 डिग्री सैल्सीयस का जिहड़ा वाधा हो गया वो 11 संख्यावां ने उहदे विचकार। तो इस तरीके दे नाल तुसीं देख लिया कि सब तो वध जिहड़ा वाधा होया वो तुहाडे कोल बी पार्ट दे विच जिहड़ा है वो सब तो वध वाधा होया। तो असीं इहदा आंसर लिखांगे कि सब तो वध वाधा -4 तो लैके 8 डिग्री सैल्सीयस का जिहड़ा तापमान दे विच उछाल आया वो उछाल सब तो वध उछाल है। सैकेंड सम इहदे विचों आया है कि हेठ लिखियां संख्यावां दे विच हेठ लिखी संख्या रेखा ते 0 तो 5 इकाइयां सज्जे पासे वाल किहड़ी संख्या होएगी? लो जी 0 ये पे 5 डिग्री सज्जे पासे वाल बधना अपने 1 2 3 4 ते 5। तो 5 डिग्री सज्जे पासे वाले बधे तो असीं कित्थे पहुँच गए? +5 ते पहुँच गए। तो सही आंसर है जी ए पार्ट, +5 जिहड़ा इसका सही आंसर है। सो इस तरीके दे नाल आपां संख्या रेखा की मदद दे नाल आपां तुसीं देखिया कि अपने कोल किस तरीके नाल असीं इंटीजर यानी कि जिहड़ियां संपूर्ण संख्यावां उन्हां नूं समझ सकते हैं। इहदी जिहड़ी तैयारी है वो चंगे तरीके नाल करनी है। संख्या रेखा ते बना के अपनी पेंसिल दे नाल सारी संख्यावां रेखा बनाणियां ने, पेन नाल इस्तेमाल नहीं करना। सो इसकी प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी पेंडिंग है तो तुसीं मैनूं मैसेज कर सकते हो, WhatsApp ते मैनूं क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो जिहड़ी भी तुहाडी प्रॉब्लम है वो मैं तुहानूं दोबारा समझा सकदा। ठीक है, जरूर पूछियो। धन्नवाद।